again. Today we'll start with the new topic, that is alloys, and in this we'll see about the definition of the alloys. So I've written it: an alloy is a homogeneous or a heterogeneous mixtures of two or more metals. Right? It can be metals, it can be non-metals, anything can be written. So when you are seeing about metals, you will write down metals. When you are seeing about the non-metals, then you will again write down the same thing. And an alloy is a homogeneous or a heterogeneous mixture of two or more non-metals. So the same things. So what we are making, that we are adding one or two metals, and this lead to give you an alloy. So with the same conditions, when a non-metals combined with the non-metals, it also give you an alloy. So you can use either a metal or you can use a non-metals also. So that thing you have to see. So in both the cases the definition is same, or you can also say that the alloys are prepared. There is one more definition for the alloy. Alloy is a substance prepared by adding one metals or a non-metal to a base metal or you can say a base non-metal in a appropriate proportions to obtain certain desired properties. It is usually done by melting the components together and solidify the mixture. So what I have done over here, you have seen that metals are combining and they are giving alloys. Non-metals combining, they are giving you alloys. So what is the case, that when they are combining together, you will see that they are always in a proper proportions or the ratios, then only they are combined together. एंड फर्स्ट दीज मेटल्स, क्योंकि मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स है, सॉलिड फॉर्म्स में होते हैं, तो ये दीज सॉलिड, इफ़ दे आर इन द सॉलिड स्टेट, दे आर मेल्टेड अप फर्स्ट ऑफ ऑल. तो इनके मेल्टिंग पॉइंट तक इनको लेके जाते हैं ताकि ये मेल्ट हो सके. उसके बाद हम इनको ठंडा करते हैं, सॉलिडिफाइड करते हैं, सो दैट दे गिव यू द डिज़ायर मिक्सचर, दैट इज़ द एलॉय. सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ दे आर फॉर्म्ड. नाउ वन थिंग इज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दे that when you are the point is that कि whatever metal you are choosing or whatever non-metals you are choosing, one thing is that कि they should not be like that कि once they are solidified or cooling ये separate हो जाए. जैसे आपने मेल्ट करा, भाई दोनों को आप मेल्ट कर रहे हो, तो ये मेल्ट हो जा रहे हैं, लिक्विड्स फॉर्म में हो जाएंगे, ईजिली मिक्स हो जाएंगे. और जब वो ठंडे होंगे तो वो एलॉय बनाते हैं, यानी जब सॉलिडिफाइड होंगे तो वो आपको एक मिक्सचर दे देंगे जो कि एलॉय है, चाहे वो होमोजीनियस मिक्सचर हो चाहे वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर हो. बट द पॉइंट इज़ दैट कि आपको एक बात ध्यान देनी है कि आप जब भी इन दोनों मेटल्स को मिलाएंगे, ये तो जब मेल्ट करोगे तो लिक्विड स्टेट में आएंगे और ईजिली मिसिबल हो जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वो सॉलिडिफाइड करे तो वो दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाए, है ना, कि एक सॉलिड मेटल अलग हो जाए, एक सॉलिड मेटल, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए जब भी आप चूज़ करते हो कोई भी मेटल्स, तो आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना चाहिए कि वो दोनों जब आप मेल्ट करो तो दोनों मिक्स हो जाए, मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में हो जाए, ईजिली मिक्स हो जाए, और जब वो सॉलिडिफाइड हो तो वो आपको एलॉय दे दें. दैट इज़ द मेन पॉइंट for these things, for the making of alloys. Then you will come one more thing. There is one word comes in class 8th also, you have learned or you have heard this word, amalgam. Amalgam is always represented for the mercury. तो आप इसमें एक कंफर्म बात होती है कि जो आपका बेस मेटल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आप इसमें मरकरी का इस्तेमाल करते हैं. अभी किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल वी से सोडियम अमलगम. तो इसका मतलब हो गया कि इसमें क्या चीज़ें हैं, आपकी सोडियम है और मरकरी है, ठीक है. अगर आप कह रहे हो जिंक अमलगम, इट मीन्स जिंक है ऑब्लिक Hg है. सो दिस इज़ द पॉइंट इज़ बीन देयर, है ना. ये आपको ध्यान दे के चलना है कि इस तरह की कंडीशंस भी होती हैं. अब मे बी पॉसिबल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड अलॉय. आई एम गिविंग यू अ स्मॉल एग्जाम्पल फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ. दिस इज़ नॉट कमिंग इन योर this theory part, but you are wearing your gold ornaments, है ना, ज्वेलरीज यू आर वेयरिंग ऑफ गोल्ड, एंड यू नो दैट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट. अगर आप गोल्ड को देखोगे, गोल्ड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. आप गोल्ड की ज्वेलरीज नहीं पहन सकते. जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग प्योर गोल्ड पहन रहे हैं, देन इट मीन्स वी आर लाइंग, बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट. एंड आप उसको जब मेल्ट करते हो तो वो मेल्टेड स्टेट में आ जाता है, वो बहुत सॉफ्ट रहता है, आप उसे पहन नहीं पाओगे. तो उसकी हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप गोल्ड में या तो सिल्वर डालते हो या आप कॉपर डालते हो. ज़्यादातर है ना कॉपर डाला जाता है, इसीलिए गोल्ड जो होता है थोड़ा येलोइश कलर का आपको दिखता है.
ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द एलॉय कंडीशन. मे बी पॉसिबल दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर. नाउ दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. सो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल. सो गोल्ड में अगर आप कॉपर डाल रहे हो तो आप सिर्फ गोल्ड की हार्डनेस को इम्प्रूव कर रहे हो, ताकि गोल्ड अब वो सॉफ्ट ना रहे, हार्ड रहे. और आप जानते हो कि गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स हम लोग पहनते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं, वो काफ़ी हार्ड होती है. सो दैट इज़ ऑल्सो द केस ऑफ एलॉय. नाउ वील कम टू आर पार्ट of alloys. Say why we, one question arises, why we are making alloys. क्या यूज़ है alloys बनाने का? It's in some people will say what is the use of making alloys. So I am telling you the use of alloys because there are certain metals, they have the useful utility or the usefulness, but because of there are certain drawbacks in them, so we cannot use them independently, है ना. जैसे अभी गोल्ड की बात है, गोल्ड एक अच्छी क्वालिटी होती है, भाई हम गोल्ड पहनते हैं, लेकिन अगर आप खाली गोल्ड को सोचो पहनने के लिए तो आप नहीं पहन सकते हो ना. तो आप क्या करते हो, एलॉय बनाते हो गोल्ड का और उसको मॉडिफाइड कर देते हो ताकि वो यूज्ड हो सके, है ना, उसकी यूज़फुलनेस बढ़ सके. इसीलिए हम लोग है ना एलॉइंग करते हैं. ये एलॉय बनाने के लिए प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं एलॉइंग. ठीक है ना. ये सब हमारे कोर्स में नहीं है, मैं तुम्हें एक जनरल एक आइडिया दे रही हूँ कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एलॉइंग और व्हाट इज़ फ्रॉम हाउ दिस एलॉयज़ आर मेड. सो हम बेसिकली एलॉइंग कराते हैं. तो हम सिर्फ इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं. आप आगे देखोगे, आप एलॉइंग कराने से आप मेटल की इंक्रीज़ करते हो हार्डनेस. मैंने अभी आपको गोल्ड की बात बताई इसमें. और यू इंक्रीज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है. देन सेकेंड पॉइंट अराइजेस कि आप इंक्रीज़ करते हो इसकी रेजिस्टेंस टू कोरिजन. अब जैसे आपको मालूम है कि रस्टिंग हो जाती है मेटल्स में, है ना, तो आप उस चीज़ को प्रिवेंट करते हो एलॉइंग कराने के वे से. ठीक है. फिर दूसरा होता है, आप और चीज़ देख सकते हो, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी. इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी. सो देर आर वेरी यूज़फुलनेस ऑफ दिस एलॉइंग. जब आप एलॉय बनाते हो तो एलॉइंग के लिए बहुत फ़ायदे हैं. साथ में आप कुछ मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, भाई अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी मेटल का बहुत हाई है तो उसको मेल्ट होने में ज़्यादा समय लगेगा ना. तो एलॉइंग कराने के लिए आप क्या बेसिकली होता है, आप है ना आप लो कर देते हो किसी भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट. ये मैं सिर्फ मेटल्स के बारे में बता रही हूँ. मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. सो देर आर सर्टन थिंग्स, यू मॉडिफाई द अपीयरेंस इन द कलर्स ऑफ मेटल्स. तो एक और कंडीशन आ जाती है कि आप मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई द अपीयरेंस एंड कलर. तो दीज थिंग्स आर देयर. ये सब आपकी आ जाती है. आप एलॉइंग क्यों कराते हो. I've told you about amalgam. I've written the definition for amalgam. मैंने कुछ examples भी दिए रखे हैं, जैसे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, वी हैव डिस्कस गोल्ड अमलगम एंड पोटेशियम अमलगम. आयरन नहीं यूज़ करते क्योंकि आयरन है ना मरकरी में डिज़ोल्व नहीं होता है, इसीलिए हम आयरन को यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. आप सिल्वर अमलगम भी होता है आपका एग्जाम्पल्स. तो यहाँ अमलगम का मैंने डेफिनेशन आपको बताई. मैंने आपको एक जनरल आइडिया बताया था कि मेटल जो अमलगम के लिए हम यूज़ करते हैं वो मरकरी होता है. बेसिकली हम होमोलोगस सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको हम अमलगम ऑफ दैट मेटल कहते हैं. नाउ द पॉइंट अराइजेस ऑफ आर कोर्स. देर आर मैनी एलॉयज़ इन आर कोर्सेज, बट अगर बुक्स में देखेंगे देर आर मैनी, बट इन आर कोर्स देर आर लिमिटेड वन. फिर भी हम लोग के लिए तो ज़्यादा ही हैं. तो वील स्टार्ट विद द पॉइंट. जैसे पहला हमारा आता है विद कॉपर एंड जिंक एलॉय. मतलब ऐसे एलॉयज़ आपको बनाने हैं जिसमें ये दो मेटल्स तो आपके फिक्स्ड होंगे और बाकी तो एडिशनल कुछ ना कुछ हो सकते हैं. वैसे तो बहुत होते हैं इसमें, आप समझ रहे हैं ना. कॉपर एंड जिंक एलॉय मतलब द एलॉय विल डेफिनेटली कंटेन्स कॉपर मेटल एज वेल एज द जिंक. इट हैज़ द परसेंटेज ऑल्सो. क्योंकि स्टार्टिंग में डेफिनेशन जब आपने देखी थी तो मैंने कहा था कि मेटल्स आर मिक्स टुगेदर विद अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस इन अ फिक्स रेशियोज़. ठीक है ना. तो वो चीज़ एक देखनी है. अब हम आप यहाँ पे देखते हैं, हमने कॉपर जिंक जो हमारे कोर्स में वैसे तो यहाँ बहुत हैं. ब्रास इज़ देयर, ब्रॉन्ज इज़ देयर. ठीक है. और मैं लिख देती हूँ सारे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये सब ICSC में है, ये भी ICSC में है. ठीक है. बाकी इसमें और होते हैं क्योंकि आप शायद बुक में देखेंगे तो जर्मन सिल्वर है आपका, और यू हैव गन मेटल है. ये सब आपके कोर्स में नहीं है. ठीक है. तो आई एम नॉट
टेलिंग यू इन दिस वीडियो, आई एम जस्ट राइटिंग द नेम्स। इतने सारे होते हैं लेकिन आपको ये 2 याद करने हैं, तो इन्हीं 2 पे हम फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रास वन। ठीक है, ब्रास में जो आपको ध्यान देना है कि कॉपर, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है कि कॉपर और जिंक का होता है, तो कॉपर जिंक तो होगा ही होगा। अब इनके परसेंटेज होते हैं, ये 60 to 80% इसमें कॉपर होता है और जिंक करीबन 40 to 20%। मतलब आप मेरी बात समझिए, अगर आप 60% कॉपर डाल रहे हैं तो आप उसमें जिंक 40% डालेंगे। अगर 80% कॉपर डाल रहे हैं तो आप 20% जिंक डालेंगे। दिस इज़ दैट्स वाई दे हैव गिवन यू इन दिस। नाउ इट हैज़ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो, यूजेस ऑल्सो। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि ब्रास की क्या खासियत है। ब्रास के बहुत से आपने है ना डेकोरेटिव आर्टिकल्स अपने घर में देखा होगा, लोगों के घर में बहुत होता है। अब तो न्यू एरास के लोग इतना नहीं लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा इसको कैरी कर, मतलब वैसे तो आसान है लेकिन फिर टाइम पीरियड होता रहता है तो ये इसमें दाग लग जाते हैं, गंदे हो जाते हैं ना। लेकिन फिर भी ब्रास के बहुत सी एंटीक्स आते हैं, तो आप इसकी पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हम ये क्यों यूज़ करते हैं ब्रास, क्योंकि ब्रास का केस है प्रॉपर्टी में हार्ड होता है, लस्ट्रेट होता है। लस्ट्रेट मीन्स शाइन करता है ना। और सबसे बड़ी बात है ईज़िली कास्ट, के आराम से जब आप इन 2 मेटल्स को मिक्स करते हो, दे ईज़िली कास्ट इनटू एनी शेप। तो किसी भी शेप में आप डाल दें, अगर आप इस कंटेनर में रखेंगे और इन दोनों मेटल्स को मेल्ट करके इस परसेंटेज में उसमें डालेंगे तो ये कंटेनर का शेप ले लेगा, तो इसीलिए ईज़िली कास्ट हो जाता है। मैलिएबल है, ठीक है, डक्टाइल है। अब मैलिएबल और डक्टाइल में तो मालूम ही होगा ना कि ये ईज़िली वायर्स बना लेता है और ये शीट्स बना लेता है ना, तो ये इसकी खासियत होती है ब्रास की, इसीलिए हम ब्रास में इतनी प्रॉपर्टीज़ आप देखते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि यूजेस इसके क्या हैं। यूजेस में ये आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में बहुत यूज़ करा जाता है ब्रास, जो वायर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका होता है डेकोरेटिव आर्टिकल्स। ये तो मैं पहले ही, हम लोग ने कई बार आपको भी बताया था कि आप डेकोरेटिव आर्टिकल्स में भी यूज़ कर सकते हो ब्रास को, और कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ कर सकते हो। पुराने ज़माने में लोग बाग ब्रास के बर्तन भी दिया करते थे, अब तो शायद ही दिखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ मशीनरीज आ जाती है, उसमें भी यूज़ होता है ये पार्ट्स ऑफ मशीनरीज, ठीक है। बहुत से यूजेस हैं, आपके बुक में हार्डली 1-2 दिए रखे होंगे, लेकिन देयर आर सो मैनी यूजेस आर देयर, ठीक है। ब्रास का भी, अब ब्रॉन्ज़ पे आते हैं। ब्रॉन्ज़ की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, टेक्स अप गुड पॉलिश, इसमें आराम से पॉलिशिंग आराम से इजी टू कास्ट होता है, ठीक है। और ब्रिटल का मतलब समझते हो ना, जैसे कांच होता है, ग्लास होता है, वो ब्रिटल, वो हार्ड दिखता है लेकिन अगर उसको आप गिरा दोगे तो वो ईजिली टूट जाता है। तो ब्रॉन्ज़ की भी कंडीशन बिल्कुल वैसी होती है। इसमें मैंने तुम्हें रेशियो नहीं बताया, मेटल्स देखो, इसमें एक कॉपर आता है, इसमें 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा और आ जाती हैं। ब्रॉन्ज़ में करीबन 80% आपका कॉपर रहता है, फिर आपका जिंक रहता है, और जिंक में आपका 1% जिंक रहता है। फिर SN, ये टिन है, टिन करीबन आपका 19% रहता है, ठीक है। ये इनका रेशियो चलता है, इसमें एडिशनल है, जिंक भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में तुम्हें ध्यान देना, ये इनकी खासियत होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ की कंडीशन में आ जाता है ब्रॉन्ज़ में। अब यूजेस में अगर हम ब्रॉन्ज़ का कंडीशन देखते हैं तो ब्रॉन्ज़ के देखो, बहुत टाइम पहले ब्रॉन्ज़ एज आपने हिस्ट्री में देखा होगा, तो कॉइन्स बनाने में ईज़िली यूज़ होता है। स्टैचूज़ आप बना सकते हैं इससे, और यूटेंसिल्स बनते हैं इनसे, ठीक है। कंट्रोल वेव्स बनते हैं, कंट्रोल वेव्स, ठीक है। दीज थिंग्स आर देयर फॉर द ब्रॉन्ज़। और मेडल्स, ब्रॉन्ज़ मेडल्स होते हैं ना, ये भी आपने यूज़ करते हैं, तो जो आपको याद रहे वो आप लिख दीजिएगा, यूजेस में पूछा जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द केस ऑफ ब्रॉन्ज़। नाउ वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट अलॉय, एंड नाउ वी विल सी अबाउट एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम अलॉयज़। सो दीज 2 एलॉयज़ आर देयर, बट इन आर कोर्स, हमारे कोर्स में ड्यूरेलियम है, ड्यूरेलियम आता है, मैग्नीलियम आता है, इसमें 2 एलॉयज़ आते हैं, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आपके एलॉयज़ में, ठीक है। आते तो बहुत हैं अलग अलग, लेकिन हमारे जो है वो हम उसको लिमिटेड लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली विल फोकस ऑन दिस, एंड आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द ड्यूरेलियम वन। इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें भी जैसा नाम है, आप ये एलॉय किस में आ रहा है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल्स होंगे, तो उसमें एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, कुछ और ट्रेसेस अदर मेटल्स के भी होते हैं, MnA मैग्नीज़,
एंड कॉपर। अब इनके परसेंटेज भी देख लीजिए, 95% है इसका, इसमें करीबन 0.5% है, और ये भी 0.5% है, और ये आपका 4% है। बेसिकली देखो जो भी आपके परसेंटेज होते हैं ये मिल के 100 हो जाना चाहिए। आपने अभी तक जितने भी देखे हैं वो जब ऐड ऑन करोगे तो ये 80 + 19 + 1 ये 100 हो गया। 100 परसेंटेज का मतलब ही 100 वैल्यू होती है। तो ये है इसके वैल्यूज़ और ये इनके परसेंटेज आपको दिए रखे हैं, ठीक है। अब इसमें कह देते हैं कि आपने ये क्या प्रॉपर्टीज़ कह दो या रीजंस हैं कि वाई यू आर डूइंग एलोइंग। तो इसमें देखो एल्यूमिनियम का जो खासियत होती है वो इम्पार्ट करता है आपको लाइटनेस, हल्कापन, ठीक है। एंड मैग्नीशियम प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इम्पार्ट स्ट्रेंथ। ये इन दोनों मेटल्स की यूजेस होते हैं, ठीक है। कि क्या आप इनको क्यों यूज़ कर रहे हो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट करेक्टर्स होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, टफ़ बनाते हैं ये लोग, इसीलिए सब मेटल्स हम ऐड ऑन करते हैं टुगेदर। अब इनका यूजेस आ जाता है, यूजेस है जैसे एयरक्राफ्ट में आता है आपका, लाइट टूल्स में आता है, कुकर बनाने में आता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कुकर जो होते हैं एल्यूमिनियम के, वो प्योर एल्यूमिनियम के नहीं होते हैं, वो बेसिकली ये ड्यूरेलिनियम के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान दे के चलना है कि कहाँ पे कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, है ना। एयरशिप्स बनाने में, एयरक्राफ्ट हैं या एयरशिप्स बनाने में भी काम आते हैं, वो बात तो एक ही है, ठीक है, बस लैंग्वेज फ़र्क से। तो ये चीज़ है आपका। अब नेक्स्ट विल फोकस ऑन द लेड अलॉय। सो लेट्स फोकस ऑन इट। लेड अलॉय, मैंने दोनों के नाम लिख दिए। सोल्डर जिसका नाम फ्यूज़ मेटल भी होता है, ठीक है, और एक और है टाइप मेटल, हमारे कोर्स में ये वाला है सोल्डर, तो वील फोकस ऑन द सोल्डर वन। याद रखना लेड का अलॉय है तो लेड इसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो हम पहला सोल्डर देख रहे हैं, हम ये सेकंड पार्ट में नाम दे रही हूँ, मे बी पॉसिबल कभी आप फ्री हो तो आप अपनी बुक्स ये देख सकते हैं, बट वी आर फोकसिंग ऑन अ सिलेबस पार्ट जो ICSE में आता है, ठीक है। तो सोल्डर में लेड है अबाउट 50%, ठीक है। टिन आता है आपका 50%, ठीक है। ये चीज़ें अब इसमें रीज़न्स हैं कि आपने फ्यूज़ मेटल में PB वो सॉरी जो टिन है वो आपको क्या इम्पार्ट कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें टिन जो है वो आपका लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय, ठीक है। अब बेसिकली जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय होता है वो कितना होता है 180, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट को वो लोअर्ड कर देता है। ये आपको यूज़ करते हैं आप इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में, आप इसको सोल्डरिंग पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द यूजेस फॉर दिस पर्टिकुलर एलॉय। नाउ लेट्स फोकस ऑन द आयरन एलॉय। इसमें भी आपके कुछ एग्जांपल्स हैं लेकिन आपको सब नहीं पढ़ने हैं। स्टेनलेस स्टील है, ये हमारे कोर्स में है। दूसरा हमारा इसमें आता है निकल स्टील, ये हमारे कोर्स में नहीं है, सो वी फोकस ऑन दिस वन। स्टेनलेस स्टील पे अगर आप फोकस करिए तो ये है आपका Fe आता है इसमें जो 75% है। इसमें निकल है, जैसा नाम है देखो, आयरन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। निकल इसमें आता है 10%, क्रोमियम आता है 15%, एंड कार्बन कम्स अबाउट 0.05। ये एक ऐसा आपका एलॉय अभी तक आपने देखा होगा जिसमें एक नॉन मेटल भी आ रहा है ना। ये क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। देखो आई एम नॉट राइटिंग द नेम ऑफ दीज थिंग्स, आई एम अगेन अगर Fe में सिंबल लिख रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ दिस इज़ आयरन। तो कभी कभी एग्जाम्स में ये आ जाता है कि कौन कौन से मेटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये आप नेम आएगा तो आप Fe नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आयरन, देन यू विल राइट डाउन निकल, देन यू विल राइट डाउन क्रोमियम, है ना। देन मेटल हैं ये सारे, नॉन मेटल की तो बात नहीं करी गई है, लेकिन अगर आप कार्बन लिख रहे हैं तो आप कार्बन को लिखेंगे इट इज़ अ नॉन मेटल्स, और बाकी सब क्या है आपके मेटल्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द केस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर देयर यूज़। जैसे अगर निकल और क्रोमियम को देखें, इन Cr सॉरी, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये क्या यूज़ करती हैं, मतलब क्यों यूज़ करे जाते हैं, ये आपको इम्पार्ट करता है लस्ट्रेट, मतलब ये आपके अलॉय में शाइनिंग प्रोवाइड करेगा। कार्बन आपको इम्पार्ट करेगा हार्डनेस, ठीक है, ठीक। प्लस ये जो निकल और क्रोमियम होते हैं ये
कोरिजन रेजिस्टेंस भी होते हैं, मतलब आपके एलॉय में रस्टिंग नहीं होएगी, ठीक है, इसीलिए इन लोग को हम यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स कम द यूजेस पार्ट्स। हमने स्टेनलेस स्टील तो घर में आप बर्तन यूज़ करते हैं, तो यू आर यूजिंग यूटेंसिल्स, घर में याद कर लीजिएगा, घर को फोकस करिएगा। कटलरीज जैसे स्पून्स और फॉक वगैरह, उसको कटलरीज बोला जाता है। ऑटोज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोर्ड्स में पूछा जाता है अलॉयज से हमेशा 1 नंबर का, तो डोंट इग्नोर इट। इतना सारा हमने पढ़ा है लेकिन 1 मार्क्स का ही आता है, 1 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आता है। सो दिस पोर्शन ऑफ एलॉय इज़ कम्प्लीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ मेटलर्जी, और प्लीज़ गो थ्रू इट एंड रिवाइज ऑल द क्वेश्चन, सी 10 years क्वेश्चन पेपर, इवन 15 years, गो टिल 15 years क्वेश्चन पेपर, बिकॉज 10th में रिपीटिशंस बहुत आते हैं, ठीक है।